Good morning, students. Today we are going to discuss next topic, chemical properties of non-metals. This is a very important topic, chemical properties of non-metals. So in the earlier video we have discussed chemical properties of metals, in which we have discussed chemical reaction of metal with oxygen, with water, with metallic salts, with dilute acids. Now we are going to discuss chemical properties of non-metals. So first is your reaction of non-metal with air, or you can say oxygen. So what happens when non-metal react with oxygen? So remember, metal react with oxygen to form metal oxides. Now here is non-metal. When non-metal react with oxygen, non-metallic oxides are formed. So non-metal when react with oxygen from air will give non-metallic oxide. Okay, so any non-metal when react with oxygen, non-metallic oxide is formed, and this non-metallic oxide is acidic in nature. So बिल्कुल opposite चलना है हमने. मेटल ऑक्साइड्स का नेचर था बेसिक, और किसी किसी मेटल ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक भी था, जिसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. बट हेयर non-metallic oxides are acidic in nature as well as neutral in nature. So they are acidic as well as neutral in nature. Acidic भी होंगे और neutral भी होंगे, basic नहीं होंगे. So we are going to discuss now acidic non-metallic oxides and neutral. Example देके बताता हूँ. So first is carbon. Carbon is a non-metal when react with oxygen, and oxygen should be excess. So there should be presence of excess oxygen. So when carbon react with oxygen, so carbon dioxide is formed. This is carbon dioxide, and this is non-metallic oxide. This is carbon dioxide, and this is the oxide of carbon. This is the oxide of carbon, and carbon is non-metal. So this is non-metallic oxide. So the nature of non-metallic oxide is acidic. Carbon dioxide is acidic in nature. How? So जब आप इस carbon dioxide को water में डालोगे, so when this carbon dioxide react with water, तो क्या बनेगा? This is H2CO3. This is called as carbonic acid. This is carbonic acid. And this carbonic acid is present in cold drink. जो cold drink में जो acid होता है, ठीक है, that is carbonic acid. So यहीं से पता लग रहा है, since carbon dioxide water के साथ react करके acid बना रहा है, it means carbon dioxide का nature कैसा होगा? Acidic होगा. Acid rain. Acid rain कैसे होता है? Acid rain is caused by the oxides of non-metal, like the oxides of carbon, oxides of nitrogen, oxides of sulfur. So this carbon dioxide is acidic in nature. Okay, कैसे पता लगेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा. दिस कार्बोनिक एसिड, दिस इज एसिडिक इन नेचर. कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है डियर, जिसका नेचर एसिडिक होगा. अगर इसका नेचर एसिडिक होगा तो इट विल टर्न, इफ इट इज एसिडिक इन नेचर, इट टर्न्स blue litmus paper into red. Since it behaves as acidic in nature, this non-metallic oxide is acidic in nature, so it will change the blue litmus paper into red. And further, when carbon dioxide react with water, carbonic acid is produced. So carbon dioxide is acidic in nature. One more example. Sulfur. This is sulfur, non-metal, plus oxygen. This is sulfur dioxide.
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर. Yes, this sulfur dioxide is acidic in nature. This sulfur dioxide, when react with water, how it is acidic in nature अभी पता लगता है. SO2 plus water, this sulfur dioxide when react with water, H2SO3. This is H2SO3. This is sulfurous acid. Sulfurous acid बोलते हैं इसको, sulfurous acid. So since sulfurous acid बन गया by sulfur dioxide, when sulfur dioxide react with water, sulfurous acid is produced. It means sulfur dioxide is also acidic in nature. Okay, sulfuric acid भी बनता है यहीं से. ये पता लगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन when they react, sulfur dioxide is produced. This is non-metallic oxide. This is the oxide of sulfur, acidic in nature. वाटर में डालोगे तो एसिड बन जाएगा. ओके, सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को जब आप वाटर में डालते हो, सिंस देखो वाटर तो क्या है, न्यूट्रल है, वाटर तो न्यूट्रल है, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो एसिड बन गया. इट मीन्स एसिड कैसे बना, इसकी वजह से. इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, बिकॉज वाटर तो न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, तो ये एसिडिक पक्का होगा, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास सल्फरस एसिड बना है. इट मीन्स दिस ऑक्साइड, दिस सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. इज इट क्लियर? सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐसे ही बनता है. सी, सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड. When this sulfur dioxide then further react with oxygen, sulfur trioxide is formed, SO3. बैलेंस कर लेना खुद. This is sulfur trioxide, SO3. बैलेंस कर लो. So how many oxygen now? 2 sulfur, 6 to 10 sulfur trioxide. Wait. See, sulfur plus oxygen will give sulfur dioxide. This sulfur dioxide when react with oxygen will give sulfur trioxide. Now you have to balance this. How will you balance? So how many oxygen? So यहाँ पे 4 लगा दो. So 4 sulfur, हाउ मैनी ऑक्सीजन, 8 एंड 2 10, यहाँ पे है 12, तो यहाँ पे लगा दो 2. तो ऑक्सीजन काउंट कर लो, 4 एंड 8 12, 4 इंटू 3 12. सो दिस इज बैलेंस. सो यहाँ पे बन गया हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड. सो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सल्फर ट्राईऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. SO3 व्हेन रिएक्ट विद वाटर, so this is H2SO4. H2SO4, this is sulfuric acid. Sulfuric acid. This sulfuric acid is very strong acid. So these oxides, sulfur dioxide, sulfur trioxide, are acidic in nature since these are the non-metallic oxides. So when non-metallic oxides, they further react with water. Since water is neutral, so it will show the acidic behavior here. Either sulfuric acid, sulfurous acid, carbonic acid, nitric acid, these all are the examples of non-metallic oxides which are acidic in nature. Then comes your, some of the non-metallic oxides are neutral in nature. See, now I am going to discuss some of the examples where the non-metallic oxides are neutral. Like carbon plus oxygen, limited supply, not excess. When carbon burn in limited supply, so बनेगा carbon monoxide, CO. पता ही आपको. Now you have to balance this. 2 carbon. This balance, this equation is balanced. So this is carbon monoxide.
दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? when carbon burn in excess of oxygen. So carbon when burn in limited supply of oxygen, carbon monoxide is formed, and you know this is neutral. This oxide, this is the non-metallic oxide, and this oxide is neutral. Neutral means it will not, you know, behave as a acidic or as a basic. It will not change the color of either blue litmus or red litmus. So it is acidic in, sorry, it is neutral in nature. This carbon monoxide is neutral in nature. So next, hydrogen. No, hydrogen gas, this is non-metal. When react with oxygen gas, this is non-metal. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में है. जब ये इनके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और गैस को जब मिक्स करेंगे और इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करवाएंगे तो यहाँ बनेगा हमारे पास वाटर लिक्विड स्टेट में. सो यहाँ पे हमारे पास वाटर बन गया, ठीक है. नाउ दिस वाटर इज न्यूट्रल. दिस इज द वाटर क्या है? हाइड्रोजन का ही ऑक्साइड है, एंड हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. सो दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बट दिस इज न्यूट्रल इन नेचर. कार्बन मोनोऑक्साइड, सिमिलरली नाइट्रोजन. सो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, N2O. These all oxides are, these all non-metallic oxides are neutral in nature. But on the same side, carbon dioxide, है ना, sulfur dioxide, sulfur trioxide, these all NO2, these all non-metallic oxides are acidic in nature. So first chemical property, when non-metal react with oxygen, either you know non-metallic oxides are produced, and these non-metallic oxides are either acidic or basic in nature. This is all about first chemical property. Let us see second chemical property, that is what happens when non-metal react with water. So reaction of non-metal with water. So याद करो metal, very important, this is reaction. metal plus water, बताया था cold हो hot हो तो क्या बनता है? metal hydroxide plus, very important, हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे. जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है. ये हाइड्रोजन गैस देखो बनता कैसे है? वाटर, यू नो वाटर में, वाटर किससे बने? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. वाटर से हमें आयंस मिलते हैं H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, मिलके वाटर बनेगा. प्लस यहाँ पे कोई भी मेटल ले लो. तो देखो मेटल क्या करता है, सिंस H पॉजिटिव का मतलब ये है, H पॉजिटिव का मतलब ये, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. ओके, तो H पॉजिटिव क्या करता है? हमेशा H पॉजिटिव की टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके हाइड्रोजन एटम बन जाए. इस पे पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए. पॉजिटिव अगर मैं यहाँ 2 लगा देता, इस मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अगर पॉजिटिव के साथ कुछ नहीं लगा, इट मीन्स इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अगर कोई देने वाला होता है इसको इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है? हाइड्रोजन एटम. अब ये हाइड्रोजन एटम फिर से दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करके बनाएगा मॉलिक्यूल. ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो ये गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. ओके, बट बात ये है कि इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तभी यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे बन रहा है? हाइड्रोजन बन रहा है, इट मीन्स कि H पॉजिटिव आयन को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन देता है मेटल.
आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे के पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ओके, सो इनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे या तो एक होंगे या तो दो या तो तीन, तो ये किसी दूसरे एटम को वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, तो जब मेटल इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो H बनेगा, बट इसको दो हाइड्रोजन चाहिए, तो दो H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, यहाँ से 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। ओके, इज इट क्लियर? तो यहाँ से क्या होगा, वाटर में जो H पॉजिटिव है वो 2H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव नहीं 2H पॉजिटिव इस मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना लेंगे। तो यही रिएक्शन होता है जब मेटल को हम वाटर में डालते हैं, तो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाटर के H पॉजिटिव आयंस को देता है, और H पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके हाइड्रोजन गैस में रिलीज़ है। तो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, तो हाइड्रोजन तो हट चुका है क्योंकि हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना दिया, और पीछे क्या रह गया, OH नेगेटिव। तो ये मेटल उस OH नेगेटिव के साथ जाके लग जाता है। तो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से H को निकालता है, H वो इलेक्ट्रॉन्स लेके हाइड्रोजन गैस बन जाता है, पीछे रह जाता है OH, इस OH के साथ फिर मेटल जाके लग जाता है और बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बन जाएगा M पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन अब दिए हैं, तो इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया, OH पे नेगेटिवली चार्ज, तो ये अब बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? सो मेटल ऐसे वाटर में H पॉजिटिव आयंस को इलेक्ट्रॉन्स दे के हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर आ जाता है, और मेटल वाटर का जो OH नेगेटिव आयन है उसके साथ जाके रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इज इट क्लियर? सो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, Na, सोडियम प्लस वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। तो क्या होगा, सोडियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तो और NaOH के साथ लग जाएगा, NaOH प्लस, इस H पॉजिटिव को यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिला होगा, तो यहाँ बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, हाइड्रोजन, सॉरी। ये तो बात थी मेटल की। तो मेटल क्या करते हैं, वाटर में H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। बट व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? नॉन मेटल की अगर हम बात करें, नॉन मेटल में चलो नाइट्रोजन की बात करो। नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? नो, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर ले, या अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी को लूज कर दे। ओके, सो या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ले, 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे? 2,8। और अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, तो इसके इसका डबलेट तो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बट इसका डबलेट तो कंप्लीट होगा, फिर भी स्टेबल होगा। तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी? 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना ये नहीं कर सकता, बट ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? गेन कर सकता है कहीं से। सो अब सिंस देखो इस नाइट्रोजन की टेंडेंसी क्या है? इस नाइट्रोजन की टेंडेंसी है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, 5 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर ले। तो सिंस देखो यार नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी आपको पता होगा नॉन मेटल्स दे आर
इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स, ठीक है, ये एक्सेप्टर्स, सॉरी, नॉन मेटल एक्सेप्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेटल सिंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये वाटर के अंदर जो H पॉजिटिव है उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से दे देगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? वाटर में जो H पॉजिटिव है, देखो हाइड्रोजन गैस तब बनेगा जब सामने वाला जो इसके साथ लग रहा है वाटर के साथ, वो उसको इलेक्ट्रॉन दे। तो नॉन मेटल, सिंस नॉन मेटल तो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स लेता है, वो तो खुद इलेक्ट्रॉन मांगता है किसी से, जैसे नाइट्रोजन के केस में देखो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वाटर में भी H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको कहाँ से H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा? ये तो खुद मांगने वाला है। नॉन मेटल तो खुद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर है, वो खुद मांगेगा किसी से, तो H पॉजिटिव को कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, ठीक है। सो इतना दरिया दिल किस में होता है? मेटल में होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है, वाटर में H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे के हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। बट नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इनका रिएक्शन नहीं होता। सो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन मेटल प्लस वाटर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। क्यों? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा वाटर के H पॉजिटिव को, हाइड्रोजन गैस ही नहीं बनेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं बने, नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी नहीं बनेगा। ओके, सो याद रखना, नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर नो रिएक्शन टेक प्लेस। व्हाई? बिकॉज नॉन मेटल्स do not provide electrons to H positive ions to release hydrogen gas. Since non-metals, they are electron acceptors, since they do not provide electrons to H positive ions, therefore they will not release hydrogen gas, so no reaction take place between metal and water. So reaction of non-metal with water, we know non-metals they are electron acceptors, वो उन्हें खुद ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो वाटर के H पॉजिटिव आयंस को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाते। तो यहाँ मैंने लिखा बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव आयंस टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, that is why non-metals do not react with water, because they are not capable of providing free electrons to H positive ions to release hydrogen gas. But यहाँ पे एक exception है, there is one exception here, fluorine. फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद आता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है हमारा नाइट्रोजन। द ऑर्डर ऑफ FON। फ्लोरीन इज हाईली, इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। सो फ्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन हो जाता है, फ्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन होता है, बट यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती। ओके, यही फंडा यहाँ भी है कि फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो H पॉजिटिव आयंस को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगा, बट फिर भी फ्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन होता है। सिंस फ्लोरीन इज मोर हाईली इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो वो फ्लोरीन ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास HF प्लस ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड। सो जब फ्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन होता है डियर, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा यहाँ पे HF, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, सिंस फ्लोरीन की ज़्यादा चलती है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन सिर्फ ऑक्सीजन के सामने फ्लोरीन की चलती है, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं हमारे वो ऑक्सीजन के अंडर आते हैं। बट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको ऑक्सीजन के अंडर आना पड़ता है, मतलब फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो
फ्लोरीन के सामने ऑक्सीजन की नहीं चलती, तो फ्लोरीन जो है वाटर में से ऑक्सीजन को निकाल देता है और ये बन जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एज अ गैशियस फॉर्म, और हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ लग के HF बना लेता है। दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस। कैसे बैलेंस करोगे? 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4F। दिस इज हाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। सो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, इतना याद रखना। फ्लोरीन वाटर के साथ तो रिएक्ट करेगा। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नेम वन नॉन मेटल दैट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। सो एक फ्लोरीन ही ऐसा है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बट रिमेंबर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, this is all about reaction of non-metal with water. See the last topic, last chemical property. What happens when non-metal react with dilute acids? So यहाँ भी same फंडा है, non-metals they do not react with non-metals। याद करो, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता था? यस, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस का ही फंडा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन मेटल्स, सिंस नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन acceptor, therefore they will not provide electrons to H positive ions to release hydrogen gas। सो एसिड की बात कर रहे हैं हम। एसिड ले लो जैसे HCl, सो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसका रिएक्शन नॉन मेटल के साथ किया हमने, तो ये वही बात होगी कि नॉन मेटल, अब अगर वो हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना चाहता है, H पॉजिटिव आयन को यहाँ से हटाना चाहता है, तो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा H पॉजिटिव को। बट इसका नेचर ही ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये तो दूसरे से मांगने वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नॉन मेटल वो है जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन मांगते हैं। तो ये कहाँ से H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो नॉन मेटल जो है H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं, सिंस इनका नेचर ही ऐसा है कि दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे मेटल का रिएक्शन तो हो जाता है एसिड के साथ, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे हाइड्रोजन बना लेते हैं, और मेटल उस सॉल्ट के साथ लग के मेटेलिक सॉल्ट बना लेता है। बट नॉन मेटल ऐसा नहीं कर पाते। तो ये मैंने लिखा है, सिंस नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, देयरफॉर दे विल नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव आयंस टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, whereas there is one non-metal that react with water or steam, that is fluorine. Fluorine react with water to produce oxygen gas. These are some of the exceptions. So the first chemical property under non-metal is non-metal react with oxygen to form non-metallic oxides. Non-metallic oxides are acidic in nature as well as neutral in nature, ठीक है। Examples: carbon dioxide acidic in nature, carbon monoxide neutral in nature, water neutral in nature, sulfur dioxide, sulfur trioxide acidic in nature। सेकंड था केमिकल नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ, नो रिएक्शन एक्सेप्ट फ्लोरीन। थर्ड इज नॉन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, नो रिएक्शन एट ऑल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट non-metals, chemical properties of non-metals. In the next video we'll discuss how metals react with non-metals. Thank you.